Hello 10th class students, hope all of you are fine at your home. Students, here I have a big news for you that from the council side your history and civics syllabus has been reduced, and in today's video I will discuss the topics which are reduced by the council. So if we talk about the firstly the part civics, in the part civics the portion Lok Sabha, the functions of the speaker is not in your syllabus now. Secondly, from the Rajya Sabha, among the powers and functions of the Union Parliament, three functions that are the judicial, electoral, amendment of the Constitution. These three functions are not in your syllabus. Second part, Union Executives. The Union Executives, first portion, the President. Among the powers, two powers are not in the syllabus of the President, that are financial and judicial powers of the President. If we talk about the second portion, the Vice President, in the Vice President, the powers of the Vice President are no longer the part of your syllabus now. Means to say you have to learn only about the qualifications for elections and term of office of the President. Now third portion, Prime Minister and Council of Ministers. In this, the functions of the Council of Ministers, that are the policy making, administrative, legislative, financial and emergency. These all functions are not in your syllabus now. Now civics last part, that is the judiciary. In the judiciary, first of all talk about the Supreme Court. One main function of the Supreme Court, that is the independence of judiciary from the control of executives and legislature. That is not in your syllabus now. Independence of judiciary from control of executive and legislature. Secondly, High Court, all the functions of High Court, that are the jurisdiction and functions, original, appellate, revisory, judicial review, court of record, enforcement of fundamental rights, and these whole of the portion, this is whole of the portion is not in your syllabus. Means to say, in the High Court you have to learn about only the composition, qualification of judges, and only the appointment. Subordinate court, Lok Adalat are as it is in your syllabus. Now come to the portion history. So students, in the history part, if I am talking about the first chapter, the first war of independence 1857, in this one portion your consequences of the war is not in your syllabus. Means to say you have to learn only about the causes. तो देखो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपने ओनली कॉजेज ही पढ़ने हैं, कॉन्सिक्वेंसेज जो है अब आपके सिलेबस में नहीं है. Secondly, जो सेकंड पार्ट है फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. इन दिस फर्स्ट टू कॉजेज, जो फर्स्ट टू फैक्टर्स थे that are the economic exploitation, repressive colonial policies. repressive colonial policies में जो आपको लॉ लिटन का पूरा पोर्शन गिवन था, that is not in your syllabus along with the economic exploitation. आफ्टर दिस, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखो यहाँ पे काउंसिल ने फाउंडेशन वर्ड यूज नहीं किया है, फाउंडेशन ऑफ यूज नहीं किया गया है. एंड द प्रिकर्सर्स जो थे INC की, जो टू प्रिकर्सर्स एसोसिएशन जो थी, ऑर्गेनाइजेशन जो थी, प्रिकर्सर जो थी, दैट आर नॉट इन योर सिलेबस. द इंटरनेशनल एसोसिएशन formed by the Surendranath Banerjee and the East India Association, which was founded by the Dadabhai Naoroji. These two are not in your syllabus. Simply council had given in the syllabus by the council side. Indian National Congress, that immediate objectives of the Indian National Congress and the first two sessions and their president should be mentioned. C part, first phase of Indian National Congress is as it is in your syllabus. In the second session, second phase जो है आपका Indian National Congress का, इसमें आपका बेटा कट हुआ है brief mention of Surat Split. Brief mention of Surat Split of 1907, that is not in your syllabus. And then after the Muslim League के पोर्शन से आपका जो था factors leading to the formation of the Muslim League is not in your syllabus. तो टॉपिक जो है आपका फैक्टर्स, जो फैक्टर्स देखो, जो कॉजेज थे, जो फैक्टर्स थे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मुस्लिम लीग, वो आपके सिलेबस में नहीं है. ओनली मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स ही अब आपने पढ़ने हैं. लास्ट पोर्शन जो है दैट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट इज आल्सो इन नॉट इन योर सिलेबस. नाउ मास फेस ऑफ नेशनल मूवमेंट, इन दिस फर्स्ट पार्ट इज as it is in your syllabus. Second B part is also is as it is in your syllabus. C part, कैबिनेट मिशन क्लॉजेज ओनली, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. ओके, फर्स्ट पार्ट देखो आपका एज इट इज ही है, महात्मा गांधी का पोर्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए. फॉरवर्ड ब्लॉक जो INA है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन गिवन आपको, ये एज इट इज है. थर्ड जो है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में
कैबिनेट डिवीजन के जो क्लॉजेज हैं उसे कट कर दिया गया है सिलेबस से. ओके, नाउ वन लास्ट पोर्शन इज लेफ्ट, दैट इज द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें देखो आपको जो कॉजेज हैं, अमंग द कॉजेज ओनली वन कॉज इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट इज द आर्मामेंट रेस. आर्मामेंट रेस आपके सिलेबस में नहीं है. देन कम टू द रिजल्ट. रिजल्ट का ओनली वन पॉइंट जो है आपके सिलेबस में है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ वर्सेज. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन इज नॉट इन योर सिलेबस. ओके, सो रिजल्ट में आपने ओनली वन टॉपिक पढ़ना है, ट्रीटी ऑफ वर्सेज. सेकेंड है आपका राइज ऑफ डिक्टेटरशिप. इसमें बेटा पूरा का पूरा पोर्शन ये आपके सिलेबस में नहीं है. काउंसिल ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, यहाँ पर देखो आपको सिलेबस में गिवन है अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द मुसलिनीज फेसिज्म एंड द हिटलर्स नाजिज्म. तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी में देखो आपके दोनों पोर्शंस आते हैं, सिमिलैरिटीज भी डिफरेंसेस भी, बट काउंसिल ने यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया है दैट सिमिलैरिटी. तो ओनली आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे सिमिलैरिटी बिटवीन द फेसिज्म एंड द नाजिज्म. बाकी का कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है फ्रॉम द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप. थर्ड पोर्शन जो है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इन दिस द कॉजेज का वन पॉइंट आपका पोल्स ऑफ अबीजमेंट, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. एंड देन आफ्टर द दिस वन रिजल्ट्स जो आपको गिवन है, ब्रीफ मेंशन ऑफ द अटैक ऑन द पर्ल हार्बर, बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, कंसिक्वेंसेज आल्सो. तो ब्रीफ मेंशन देखो ओनली मीन टू से सेकंड वर्ल्ड वॉर के ओनली आपने कॉजेज ही करने हैं. उसके बाद में आपको हिरोशिमा नागासाकी का और पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक जो हुआ था वो आपने नहीं पढ़ना है. और कॉन्सिक्वेंसेज जो थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के, जो रिजल्ट है सेकंड वर्ल्ड वॉर के, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है. दैट इज द डिफीट ऑफ एक्सिस पावर्स, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड द कोल्ड वॉर. Last portion, United Nations. In these objectives are in your syllabus composition and functions of General Assembly, Security Council and International Court of Justice. यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया है काउंसिल ने एनी 4 फंक्शंस. तो जो फंक्शंस हैं उसमें आपने ओनली 4 फंक्शंस को पढ़ना है. मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, एनी 4 फंक्शंस. तो 4 फंक्शंस आपने यहाँ पे ओनली प्रिपेयर करने हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. नॉन अलाइड मूवमेंट, ब्रीफ इसका मीनिंग जाएगा. ऑब्जेक्टिव्स आपके सिलेबस में हैं. सिलेबस में नहीं है पोर्शन बेटा आपका पंचशील एंड रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, दैट आर नॉट इन योर सिलेबस. उसके बाद में नेम ऑफ आर्किटेक्ट्स ऑफ नेम. इसमें देखो वैसे तो 4 आर्किटेक्ट्स के नेम गिवन है, बट काउंसिल ने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं यहाँ पर 3 नेम्स, जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट नसीर, जोसेफ ब्रोज टीटो. तो नेम ऑफ आर्किटेक्ट्स ऑफ नेम में 3 जो मेन पर्सन्स के नेम है, जो आर्किटेक्ट्स हैं, 4th का नेम मेंशन नहीं किया है यहाँ पर. 3 का नेम स्पेसिफिकली काउंसिल ने मेंशन किया है. सो यू हैव टू लर्न ओनली दीज नेम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस. होप यू अंडरस्टैंड इट. हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक.